Suprabhat, good morning and welcome to the class, dear students. Today we discuss few more examples on Fourier transform, Fourier sine, Fourier cosine transform, and then finally we end up with this chapter. So question is, find Fourier sine transform of f of x equal to, it is sin x for 0 less than x less than a. X is the variable, this is real line, this is 0, this is a. Those x which are here greater than 0 but less than a, all these real numbers, for all these real numbers the definition of the function is sin x. It is sinusoidal on the domain 0 to a, and a onwards it becomes 0. A onwards it is becoming 0, and we are supposed to obtain Fourier sine transform of such a function. When it is directly asked obtain Fourier sine or Fourier cosine transform, we need not check the nature of the function. We directly have to choose appropriate formula and perform integration. So I hope the definition of the function is clear. On 0 to a, the definition is sin x, and a onwards the definition is 0. So this is also indicated as open interval 0 comma a. The set of all these real numbers situated in between 0 and a is also denoted by open interval 0 to a. So on 0 to a it is sin x, and a onwards it is 0. The definition of the function could be any. We have to take as it is. We can't make change in the definition of the function. So Fourier sine transform formula is f suffix s of s. So it is function of s is root 2 by pi integration from 0 to infinity f of x into sin sx dx. So we multiply given function to sin sx and perform integration from x is equal to 0 to x is equal to infinity and multiply by this coefficient root 2 by pi. This will give Fourier sine transform of the given function f of x. So are you clear with the idea? Shall we proceed further? Straightforward simple question, could be asked for 5 marks. Fourier sine transform for the given function is obtained by splitting the integral. We split the integral from 0 to infinity into 2 parts. One interval is 0 to a, plus integration is extension of addition, so there will be plus only. 0 से a और a से infinity. 0 से infinity इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर दिया है दो इंटीग्रल्स में, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन 0 से a पर sin x है, तो वहाँ पर f of x sin x रखा जाएगा और a से इन्फिनिटी तक फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसीलिए उसे 0 रखेंगे और इसी कारण से हमने उसे दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट किया है. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. तो a से इन्फिनिटी पर फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है, तो 0 इंटू साइन एस एक्स इज 0, इंटीग्रल ऑफ 0 फंक्शन इज 0, तो ये इंटीग्रल 0 बन चुका है और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म केवल ये इंटीग्रल की वैल्यू ढूंढना रह जाता है. नाउ कम टू दिस पॉइंट. साइन ए साइन बी सॉर्ट ऑफ है. इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी लाइट रूल से हम निकालते हैं, बट u में से एक लॉगरिथमिक या इनवर्स या अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल हो और दूसरा उससे अलग हो, उससे अलग लेकिन इनमें से ही. अब यहाँ पर साइन एस एक्स है और साइन एस एक्स दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प करेगी.
ट्रिग्नोमेट्री इस प्रोडक्ट को, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, और इंटीग्रल इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हमारा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम केवल एक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व हो जाएगा। तो यूजिंग sin a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू sx, a की वैल्यू x, b की वैल्यू sx लेते हुए साइन x इंटू साइन sx क्या बन जाएगा, कॉस x माइनस sx, बिकॉज इट इज कॉस a माइनस b, माइनस कॉस a प्लस b, सो इट इज माइनस कॉस x प्लस sx। तो इस एंगल की वैल्यू में से x कॉमन ले लिया और इसमें से भी x कॉमन ले लिया, और अब ये 1/2 बाहर ले लिया है, और अब इंटीग्रेशन आसानी से परफॉर्म हो जाएगा। 0 से a पर cos 1 माइनस s टाइम्स x का विथ रिस्पेक्ट टू x, cos 1 माइनस x dx का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कोएफिशिएंट हुआ। cos ax का इंटीग्रल होता है sin ax डिवाइडेड बाई a, तो उसी के चलते इसका इंटीग्रेशन आएगा sin 1 माइनस s x, ये एंगल है, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 माइनस s। तो ये cos 1 माइनस s x का इंटीग्रेशन sin 1 माइनस s x डिवाइडेड बाय 1 माइनस s, माइनस उसी लाइंस पर cos 1 प्लस s टाइम्स x का इंटीग्रेशन sin 1 प्लस s टाइम्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस s। अब इंटीग्रेशन हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप है लिमिट्स को देना। लिमिट्स, अपर लिमिट इज a एंड लोअर लिमिट इज 0। पहले अपर लिमिट देंगे a माइनस लोअर लिमिट 0 देंगे। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस, x के जगह पर a रख दिया है, x के जगह पर a रख दिया है, ये हो गया आपका अपर वाला लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर 0 रख दिया है, x की जगह पर 0 रख दिया है। पहले केस में अपर लिमिट a रख दिया, दूसरे केस में लोअर लिमिट x की जगह पर 0 रख दिया। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसीलिए x की रिप्लेसमेंट हो रही है। अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते, जिस एक्सटेंट तक सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उस एक्सटेंट तक करना है। साइन 1 माइनस एस ए अपॉन 1 माइनस एस माइनस साइन 1 प्लस एस अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस, ये कंप्लीट है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस, इट इज नॉट, नहीं तो कोई सोचेगा कि मैडम ये कैंसिल नहीं हो सकते क्या, ये 1 प्लस एस कैंसिल होगा। आई नो कुछ लोग ऐसा सोच सकते, नो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मीनिंग अलग है। यहाँ पर मीनिंग क्या है, साइन ए थीटा, मतलब साइन निकाल लीजिए और फिर ए से डिवाइड कीजिए। इट इज नॉट साइन ऑफ ए थीटा अपॉन ए, पॉइंट टू बी रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी क्लियर विद दिस। ए थीटा एंगल है, उसका साइन, साइन क्या होता है, साइन ऑफ थीटा इज, व्हाट इज साइन ऑफ थीटा, इज इट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद कर लेना, ठीक है। सो इट इज साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ए। सो अपर लिमिट तो ये आ गया, लोअर लिमिट में कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, साइन ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस एस इंटू 0 0, साइन 0 इज 0, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, ये भी 1 प्लस एस इंटू 0, अगेन दिस इज साइन 0, साइन 0 अपॉन एनी नंबर इज 0,
0 अपॉन एनी नंबर इज 0, रिमेंबर दिस। तो उसके चलते 0 माइनस 0 भी 0 हो गया, और किसी क्वांटिटी में से 0 सब्ट्रैक्ट करना मतलब वो सेम क्वांटिटी आ जाएगी। सो दिस इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन साइन x। नाउ यू मे थिंक साइन x फंक्शन का क्या साइन ट्रांसफॉर्म लेना, बट कोई फंक्शन अगर साइन बिहेव कर रहा है किसी इंटरवल पे और बाकी जगह वो 0 कर रहा है, तो उसका भी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकल सकता है ना। मतलब ऐसा कोई नहीं है, कोई भी फंक्शन दे दो उसका साइन ट्रांसफॉर्म निकल सकता है, प्रोवाइडेड ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता हो। आर यू डन विद दिस फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म? आगे समझ में इस फंक्शन का डायरेक्टली हमने फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ले लिया और इंटीग्रेशन परफॉर्म किया। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ी हमें इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए। लिमिट्स सब्स्टिट्यूट की, साइन 0 0 होता है ये यूज किया, एंड फाइनली वी कुड गेट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे नेचर जांचने की आवश्यकता नहीं होती है, दिए हुए फंक्शन को एज इट इज फॉर्मूला में एफ ऑफ एक्स की जगह रख के इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेना है। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? शैल आई प्रोसीड फर्दर? शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस, ये अच्छी से लर्न कर लेना फॉर्मूले, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। Now this example, find Fourier sine transform of, हर प्रॉब्लम दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, फाइंड Fourier sine transform of फंक्शन में बी इन एनी फॉर्म वी हैव टू टेक एज इट इज। तो यहाँ पर फंक्शन 0 से 1, यहाँ पर क्या लिखा है 0 लेस देन x लेस देन 1, तो इसका मीनिंग क्या है, ये रियल लाइन है, रियल नंबर्स का सेट, इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स इधर निगेटिव रियल नंबर्स है ना। तो 0 लेस देन और इक्वल टू x, see the definition of the function that is different from other examples। 0 से 1 पर, लेकिन यहाँ पर क्या इसको कैसे रीड करते हैं, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। x वेरिएबल डिनोट करता है, 0 और 0 के आगे और 1 से कम सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब ये इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स है। 0 से 1 तक जितने भी नंबर्स है 0 और 1 को इंक्लूड करते हुए उनके लिए डेफिनेशन कैसी है, x। आगे वो क्या कह रहे हैं, 1 से 2, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 पे डेफिनेशन चल रही है 2 माइनस x। और थर्ड कह रहे हैं वो x ग्रेटर देन 2, जो x 2 से बड़े हैं उनके लिए डेफिनेशन 0 है। तो अभी मैं रियल लाइन ड्रॉ करती हूँ और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि फंक्शन कहाँ कहाँ कैसा बिहेव कर रहा है। 0 1 2 2 के आगे, 0 और 0 के आगे 1 और 1 तक यहाँ के x के लिए
एफ एक्स है। 1 और 1 के आगे और 2 और 2 से पहले f की डेफिनेशन 2 माइनस एक्स है और 2 से आगे 2 के आगे डेफिनेशन 0 है। तो अगर ग्राफ निकालना हो 0 से 1, फंक्शन f इज x इटसेल्फ, यहाँ से 2 माइनस एक्स, 2 मतलब 1, देखो 1 दोनों में कॉमन है तो 1 के लिए 1, ये वाला भी 1 देगा और ये 2 माइनस 1 भी 1 देगा, तो दोनों भी डेफिनेशन से 1 के लिए वैल्यू सेम ही आ रही है। 2 ऑनवर्ड्स 2 माइनस एक्स, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, लेकिन उसको प्लॉट करना अभी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे कि 1.5 के लिए क्या आएगा, 2 माइनस 1.5 इट इज 0.5, तो वो वैल्यू कम रहेगी 1.5 के लिए, तो वो ऐसा जा रहा है, डिक्लाइनिंग है, डिक्लाइनिंग ही रहेगा, और 2 ऑनवर्ड्स फिर वो 0 हो जाता है। ऐसा बिहेवियर है। ये तो सिर्फ एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है कि, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन पे फोकस करना है, ठीक है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करना है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म परफॉर्म करना है 3 इंटरवल्स पे 3 अलग अलग डेफिनेशन है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला इज f suffix s of s, it is a function of s given by square root of 2 by pi into integration from 0 to infinity f of x into sin sx dx। तो इस इंटीग्रल के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, कितने इंटीग्रल्स में स्प्लिट करना पड़ेगा? फंक्शन अगर ऐसा हो तो 3 मैम। यस, ऑब्वियसली 3। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से इंफिनिटी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी, 3 इंटरवल्स में। एडिशन इसीलिए आती है क्योंकि इंटीग्रेशन एक्चुअली एडिशन ही है, इंटीग्रेशन एक्सटेंशन है एडिशन का, इसीलिए एडिशन है, एक्सटेंशन है एडिशन का, इंटीग्रेशन, इसीलिए एडिशन साइन आती है बीच में। रिमेंबर दिस फॉर योर नॉलेज। तो बस इंटीग्रल को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं और जिस हिस्से पे जो डेफिनेशन है वो रख देते हैं, ठीक है। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी। 0 से 1 में f को रख दिया x, 1 से 2 पर f को रख दिया 2 माइनस एक्स, और 2 ऑनवर्ड्स f रख दिया 0। तीसरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा एज यूजुअल बाय दैट यूजुअल एक्सप्लेनेशन। तीसरा इंटीग्रल वैनिश हो जाएगा, बचेगा पहला और दूसरा। अब ये 2 इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने के लिए ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस एंड सो ऑन। अब इन दोनों में से u कौन बनेगा, तो ये लाइट रूल डिसाइड करेगा। सबसे पहले तो ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये एक इंटीग्रल है, ये दूसरा इंटीग्रल है। इसमें भी ये एक अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यूवी रूल यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला सेकेंड इंटीग्रल के लिए भी लगाना पड़ेगा। यूवी लाइट रूल यहाँ पर यूज होगा। ए पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ए वाला यू फंक्शन बनेगा, टी वाला वी फंक्शन बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इंटीग्रल के लिए एक्स यू बनेगा और साइन एक्स वी बनेगा।
2 माइनस एक्स यू बनेगा और साइन एस एक्स वी बनेगा। तो अब यही फॉर्मूला दो जगह लगाना है। जो एट अ टाइम नहीं कर पाते वो इसे I1 प्लस I2 कहकर अलग अलग परफॉर्म करके फिर इस इक्वेशन को 1 नंबर, इसे 2 और इसे 3 देकर 2 एंड 3 इन 1 भी कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स पे काम करके फाइनली उनको ज्वाइन करना वो भी हो सकता है, राइट। तो लेट अस परफॉर्म इंटीग्रल √2 by pi as it is u इंटिग्रल ऑफ v1 चा काय अर्थ असतं, v चा इंटिग्रेशन, मग v साइन एस एक्स आहे पहिल्या इंटिग्रलमध्ये, u v चा इंटिग्रल v1 मायनस u चा डेरिव्हेटिव्ह v1 चा इंटिग्रेशन, हा v1 हा फंक्शन उचलायचा आणि त्याचं पुन्हा इंटिग्रेशन करायचं, हा त्याचं पुन्हा इंटिग्रेशन. पुढचं टर्म काय येणार नाही कारण एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल. आधी एक्स, नंतरच्या टर्ममध्ये एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि पुढच्या टर्ममध्ये 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0 और 0 के बाकी के सब डेरिवेटिव 0 होते हैं. तो सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स सारी टर्म्स वैनिश हो जाएगी, दे विल नॉट एग्जिस्ट, दे बिकम 0. They exist and they become 0 actually. They exist, they become 0 and any number plus 0 is the number itself. तो ये इंटीग्रेशन पहली टर्म का परफॉर्म हो चुका है, उसे लिमिट्स देना बाकी है. अब इस इंटीग्रल पे काम करते हैं सेकेंड वाले. तो प्लस, देयर इज अ प्लस u v1, तो उसका v और इसका v सेम है, साइन एस एक्स साइन एस एक्स, तो u v1 u v1 साइन एस एक्स का इंटीग्रल माइनस u का डेरिवेटिव u डैश u v1. देखिए u के साथ v1 होता है, मतलब u एज इट इज उठाते हैं लेकिन v का इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ पर. ऐसे नहीं कि u एज इट इज रखा तो v भी एज इट इज रखा, नहीं, u v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव एंड v2, मतलब जो भी इंटीग्रेशन आया है उसका फिर से इंटीग्रेशन, और 2 माइनस एक्स का पहला डेरिवेटिव -1 आएगा और 2 माइनस एक्स का दूसरा डेरिवेटिव यानी -1 का डेरिवेटिव 0. इसलिए यहाँ पर भी ये सीरीज सेकेंड टर्म तक ही वाइंड अप हो जाती है. तो इंटीग्रेशन इज फाइनली ये √2 by pi एज इट इज, ये वाला √2 by pi, ये पहला इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाता है. एक्स यू फंक्शन था, साइन एस एक्स का इंटीग्रल, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए. साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए. सो विथ साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा माइनस कॉस एस एक्स डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज एस. सो u v1 माइनस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि माइनस कॉस एस एक्स अपॉन एसचा इंटिग्रल, and integration is from 0 to 1 पहिल्या इंटिग्रलसाठी, प्लस 2 मायनस एक्स ॲज इट इज, साइन एस एक्स हाच त्याचा पण v आहे तर त्याचा आलं मायनस कॉस एस एक्स डिवायडेड बाय एस, मायनस 2 मायनस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह, 2चा डेरिव्हेटिव्ह 0
minus x the derivative minus 1. 0 minus 1 is minus 1. So it has become, the derivative is minus 1, and minus into minus becomes plus. That is further step. आणि हे मायनस कॉस एस एक्स अपॉन एसचा इंटिग्रल. ही पहिली टर्म आहे, ही दुसरी टर्म आहे. आता आपण इंटिग्रल 1 बाय 1 दोघांचं करतोय. ही पहिली टर्मचं इंटिग्रल मायनस, आता हे कंबाईन करून टाकलं, मायनस एक्स कॉस एस एक्स अपॉन एस, हे मायनस इंटू मायनस बिकम्स प्लस, प्लस कॉस एस एक्स अपॉन एस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एस एक्स अपॉन एक्स एस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, ये बाकी है. यहाँ पे भी उसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया. पहली टर्म ऐसी, ये 1 माइनस 2 माइनस और 3 माइनस, सो इट विल बी 2 माइनस एक्स cos sx upon s with a minus sign, and this is in, because of this 3 minus sign, it is minus integration cos sx upon s. And this is from 0 to 1 and this is from 0 to 2. Now from this step we can proceed further. Cos sx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ये टर्म एज इट इज cos sx अपॉन s का इंटीग्रेशन, ये 1 अपॉन s कांस्टेंट है, उसको साइड में रखा. cos sx का इंटीग्रेशन, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, cos ax का इंटीग्रल होता है sin ax डिवाइडेड बाय a. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax अपॉन a. तो उसके चलते cos sx का इंटीग्रेशन हो गया sin sx अपॉन s विथ रिस्पेक्ट टू x. ये माइनस, ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पर भी cos का इंटीग्रल sin, एंड cos का इंटीग्रल sin sx डिवाइडेड बाय s, और ये 1 अपॉन s ऑलरेडी था, 1 अपॉन s ऑलरेडी था. सो यहाँ से यहाँ आ गए हैं हम. अब आगे की स्टेप, हमने लिमिट्स सब्स्टिट्यूट किए हैं. ये पहले इंटीग्रल में पहले x को रख दिया 1, x को रख दिया 1, x को रख दिया 1, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x को रख दिया 0, x को रख दिया 0, x को रख दिया 0. तो पहले इंटीग्रल की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं. अब सेकंड इसमें लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये सेकंड है, इसमें पहले x को रखते हैं 2, अपर लिमिट 2. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, अपर लिमिट इज 2. x को रखा 2, x को रखा 2, x को रखा 2, माइनस लोअर लिमिट, x को रखा 1, x को रखा 1, x को रखा 1. तो ये ऐसे इंटीग्रेशन की लिमिट्स, दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट, पहले इंटीग्रल के लिए अपर लिमिट 1, दूसरे पहले की लोअर लिमिट 0, दूसरे की अपर लिमिट 2 माइनस दूसरे की लोअर लिमिट 1 रख दी है. अब ये क्या बनता है वो देखेंगे. सो 1 इंटू कॉस एस, s इंटू 1 इज 1, सो 1 इंटू कॉस एस इज कॉस एस, सो माइनस कॉस एस अपॉन एस, 1 अपॉन एस साइन एस अपॉन एस. This minus into minus becomes plus, plus 0 into anything is 0. So this number is 0. 0 plus sin of 0 is 0. So ये term 0 हो गई. So it becomes 0 plus 0.
√2/π। ये टर्म 2 - 2 0 के कारण 0 हो गई। ये टर्म एज इट इज 2 - 1 1 cos s अपॉन s, ये टर्म एग्जिस्ट हो रही है। सो अब रिमेनिंग टर्म्स को और डिटेल में देखते हैं। ये दो टर्म्स यहाँ आ गए, ये 1 2 3 ये यहाँ आ गए, इसे इस ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर √2/π दोनों के पास है, इसलिए अब उसे फिर से कॉमन ले लिया है। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी और ये पांचवी टर्म। अब आप अगर ध्यान से टर्म्स को देखेंगे, ये टर्म, ये टर्म, ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो प्लस होता है तो साइंस एज इट इज आएगी। ये क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, ये क्वांटिटी यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पर आ गई। तो ये ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म सेम, अलग अलग साइन, सेम टर्म्स विथ डिफरेंट साइन वी विल कैंसल आउट। येलो पार्ट ये, येलो पार्ट ये, साइन दोनों की सेम है और वो प्लस प्लस है, तो वो हो गया 2 टाइम्स, और ये माइनस वाला यहाँ पर आ गया। 2 टर्म्स कैंसिल हो गई, 2 टर्म्स कंबाइन हो गई और बची एक टर्म, वो लिख दी। तो अब ये ऐसे हो गया है सिंप्लीफिकेशन। और अब इसमें और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। साइन 2s को मैंने लिखना है 2 sin s cos s, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इस साइन 2s को 2 sin s cos s लिख देती हूँ ताकि और सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो बस वही किया है, साइन 2s को ऐसे लिख दिया है ऊपर। और अब क्या कौन सा पार्ट कॉमन है वो देखिए, मैंने ऐसे पिंक कलर से आइडेंटिफाई किया है। इसके पास 1/, है, इसके पास भी 1/s है, इसके पास sin s अपॉन s है, इसके पास भी है। तो 1/s एक्चुअली 2 sin s अपॉन s इंटू s, ये कॉमन पार्ट ले लेते हैं। 1 - cos s, एक्चुअली ये भी हो सकता है 1 - cos थीटा अपॉन 2 इज cos, how much it is 1 - you remember that 1 - cos 2 theta upon 2 is sin square theta. 2 थीटासाठी थीटा होतो, तर थीटासाठी इथे साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2 होईल। तर हे पुढे पण होऊ शकतं 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 2/π sin s अपॉन s स्क्वेअर sin square s upon 2. So this could be also further simplified, and this is the Fourier sine transform of the function which takes the value x on closed interval 0 to 1, which takes the value 2 minus x on closed interval 1 to 2, and it becomes 0 for 2 onwards, for real numbers which are 2 onwards. So ये एक अलग एग्जाम्पल था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ढूंढने के लिए। तो कितने इंटरेस्टिंग से ऑपरेशंस परफॉर्म किए हमने। पहले इंटीग्रल को स्प्लिट किया, देन इंटीग्रेशन परफॉर्म किया बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले, एंड देन substituting the limits and combining like terms, cancelling like terms with opposite signs, and then again using trigonometric formula, and finally we get the Fourier sine transform. Are you done with this, dear students? आगे समझ में? जितना सिंप्लीफिकेशन हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात अगर सिंपल हो तो अच्छा है ना? That's why. Shall I proceed for the next example, dear students? आगे बढ़ना है? Yes.
ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। हर एग्जाम्पल दूसरे से डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है, उसकी अपनी एक यूनिक फीचर है। फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स। e रेज टू माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, इस फंक्शन का फोरियर वाला साइन ट्रांसफॉर्म ढूंढना है। क्योंकि डायरेक्टली फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछा है, इसीलिए फंक्शन का नेचर समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा होता तो हम उसका नेचर जांचकर अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते, लेकिन क्लियरली यहाँ पर उन्होंने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछा है और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f of x is √2 by pi integration from 0 to infinity f of x into sin sx dx. So let us begin with this formula. अब ये e raised to minus ax upon x दिया है, मतलब थ्रू आउट 0 से लेके इन्फिनिटी पर उसका बिहेवियर e raised to minus ax upon x है। उन्होंने अलग अलग से इंटरवल्स दी ही नहीं है, तो उसका क्लियर मीनिंग है कि पूरे डोमेन पे एक ही डेफिनेशन फंक्शन की चल रही है। दिस शुड बी नोटेड। फोरियर ट्रांसफॉर्म में यही इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन को समझना, कहाँ पर उसकी डेफिनेशन कैसी है, फॉर्मूला कौन सा चूज करना है और फिर इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करना है। ये 3 स्टेप्स हैं। तो लेट अस बिगिन। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म विल बी √2 by pi integration from 0 to infinity e raised to minus ax upon x into sin sx dx. फंक्शनची किंमत ठेवून दिली। आता √2 by pi बाहेर आहे, तर असं इंटिग्रेशन परफॉर्म करणं आपल्यासाठी तरी शक्य नाही आहे। हा एक एक्सचा फंक्शन, हा दुसरा एक्सचा फंक्शन, या दोघांचं प्रॉडक्ट आणि मग त्याला डिवाइड केलं एक्सने। इट इज़ सो डिफिकल्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज़ नहीं निकाल सकते, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन होती है ना, तो इस प्रॉब्लम की भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे है देखिए, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने क्या किया, ये s का फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ s का फंक्शन है, तो हमने दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s कर दिया। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव होगा d बाई डी एस। सिंपली d बाई डी एस चलाना दोनों साइड्स पर, इधर भी दे दिया d बाई डी एस, इधर भी दे दिया d बाई डी एस। तो डेरिवेटिव ऑफ f सफिक्स s फंक्शन ऑफ s, फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राइट हैंड साइड नो डाउट s का फंक्शन होने वाला है, लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, तो ये इंटीग्रैंड फंक्शन होता है। क्या कहते हैं इसे, इंटीग्रैंड फंक्शन। जिसका इंटीग्रेशन होता है ना, उसे इंटीग्रैंड फंक्शन कहते हैं। जैसे कोई लड़की की शादी हो रही है तो उसको दूल्हा कहते हैं ना, कोई लड़की की शादी हो रही है तो उसे दुल्हन कहते हैं, वैसे। तो ये इंटीग्रैंड फंक्शन अभी है, इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी शादी नहीं हुई, तो वो इंटीग्रैंड फंक्शन है। तो ये डिफरेंशिएशन फंक्शन होता डायरेक्टली रेडी तो हो जाता, बट अभी नहीं हो सकता, तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन रूल यूज करना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का यूज करते हैं। वो रूल क्या है, सपोज 2 वेरिएबल्स में फंक्शन है और इंटीग्रल होने के पहले ही आपको डिफरेंशिएशन परफॉर्म करनी विथ रिस्पेक्ट टू 1 वेरिएबल, तो कर सकते हैं अंदर डो बाय डो एस। अंदर
पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर लेना और फिर इंटीग्रेशन करना। ये है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का रूल, DUIS रूल कहते हैं इसे, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब शादी होने वाली और लड़के वालों ने कह दिया अभी हमें एक कार भी चाहिए, तो लड़की वाले क्या करेंगे, कहीं से तो व्यवस्था करेंगे कार की। तो ऐसी ये व्यवस्था हो गई है। आज का ज़माना बदल गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था, राइट। तो बस ये व्यवस्था हो गई है, D/DS अंदर जाके DO/S बन गया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, प्लीज नोट इट, ओके। तो अंदर जाके पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये x का फंक्शन है, इसको साइड में रख देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, और DO/S इस फंक्शन पे लग जाएगा। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली साइन Sx विथ रिस्पेक्ट टू s। साइन Sx का डेरिवेटिव, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, साइन Ax का डेरिवेटिव होता है A cos Ax, A into cos Ax, पॉइंट टू बी नोटेड। तर त्या अनुषंगाने साइन Sx चा इंटिग्रल विथ रिस्पेक्ट, साइन Sx चा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s होईल x cos s, x cos Sx, x इंटू cos Sx, क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, s किया है, तो s का कोएफिशिएंट x है, तो x को सामने लिख दिया। समटाइम्स यू नो s और x का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम जाता है ना, इसीलिए कुछ बुक्स t यूज करते हैं, क्योंकि st इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इसीलिए कुछ बुक्स t नोटेशन भी यूज करते हैं। बट ठीक है, हमने x यूज किया है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन Sx with respect to s will be cos Sx into coefficient of s, that is x cos Sx. I hope this point is clear. तो डिफरेंशिएशन परफॉर्म हो गया है, मतलब चलो अब बात हो गई है और अब शादी होने वाली है, लगने वाली है शादी। तो x cos Sx, अब क्या हो रहा है, अच्छा हो गया, ये x कैंसिल, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था ना, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड बाय साइन डिवाइडेड बाय x, तो अब x रिमूव हो गया है, ऑब्स्टैकल थोड़ी सी रिमूव हो गई है। डिफरेंशिएशन किया है नो डाउट, लेकिन रास्ता तो निकलने ही वाला है। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ Fs इक्वल्स टू √2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e⁻ax cos Sx। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आसान है ना, अब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म हो सकता है, तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं। इसको परफॉर्म करेंगे कौन से फॉर्मूला से, इंटीग्रल e⁻ax cos bx dx से, इंटीग्रल e⁻ax cos bx dx से। आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर a माइनस a है और b आपका s है, तो इस फॉर्मूला में a की जगह -a रखिए और b की जगह s रखिए। दैट इज व्हाट वी हैव डन टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन, टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, a को -a रखकर और b को s लेकर। √2/π जशाला तसं ॲज इट इज e⁻ax डिवायडेड बाय -a चा स्क्वेअर प्लस s स्क्वेअर
माइनस ए कॉस एस एक्स प्लस बी प्लस एस साइन एस एक्स, and this integration is done and the limits are 0 to infinity. Point to be remembered, dear students, you have to substitute the limits from 0 to infinity. मतलब जैसे कि हो गया, अभी शादी हो गई, लेकिन अब वो दुल्हन को उनके घर भेज देते हैं, वैसे. So let us substitute the limits now. Upper limit is infinity. यहाँ पर x की जगह infinity रख दिया. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ है. x की जगह पर infinity, x की जगह पर infinity. ये हो गया आपका अपर लिमिट. x की जगह पर infinity रखना. माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखना. जहां जहां इन्फिनिटी था वहां वहां 0 रख दिया, बाकी सब एज इट इज. अब इस पे काम करते हैं. e रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज 0. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, infinity is undefined and a into infinity is again infinity. A is some real number, a into infinity is infinity, and minus a infinity is minus infinity, and e raised to minus a infinity will become e raised to minus infinity, which is 1 upon e raised to infinity. 1 upon e raised to infinity is 1 upon infinity is 0. डायरेक्टली आप इसको 0 लिख सकते हो, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है. तो क्योंकि ये क्वांटिटी 0 हो गई है, कॉस साइन कुछ भी रहे, कॉस साइन 1 माइनस 1 के बीच में रहेगा, फाइनाइट टर्म है. इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड से डिफाइंड टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अनडिफाइंड ही रहेगी वो. तो ये टर्म अपर लिमिट 0 हो चुका है. अपर लिमिट 0 हो चुका है. बात करते हैं लोअर लिमिट की. e रेस टू माइनस ए 0, अगेन माइनस ए 0 इज 0, e रेस टू 0 इज 1, तो ये हो गया 1. e रेस टू माइनस ए 0 इज e रेस टू ए 0 चा इनव्हर्स, म्हणजेच 1 अपॉन e रेस टू ए 0. a into 0 is 0, e raised to 0 is 1, 1 upon 1 is 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1. cos s 0, cos of 0 is 1, minus a into 1 is minus a. पण साइन 0 असल्यामुळे ही टर्म 0 झालेली, पण ही मात्र मायनस ए आहे. मायनस ए प्लस 0 इज मायनस ए, अँड सेकंड इंटिग्रलमधलं एक टर्म सर्वाईव्ह करतं आणि पहिल्या इंटिग्रलमधले पूर्ण टर्म 0 होते. 0 मायनस ए अपॉन ए स्क्वेअर प्लस एस स्क्वेअर, सो इट इज 0 प्लस माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, एंड दिस इज द डेरिवेटिव. हम डेरिवेटिव पे काम कर रहे थे, रिमेंबर दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. हमें चाहिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, पर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया. डिफ्रेंशिएशन वाला फंक्शन को और सिंपल बनाया, क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पा रहा था उसमें, और डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन मिल चुका है. लेकिन हमें एक्चुअली एफ ऑफ एस चाहिए, एफ सफिक्स एस ऑफ एस चाहिए. तो अब डिफ्रेंशिएशन से आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे, डिफ्रेंशिएशन पे आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस. जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन किया था, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं. और वैसे भी वो एक ही सिंगल वेरिएबल का ही फंक्शन है. इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस. डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रल नलिफाइज. ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन नील होके सिर्फ एफ सफिक्स एस ऑफ एस इतना बचेगा. और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये कॉन्स्टेंट्स है, बाहर ले लिए, कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लिया, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है.
तो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रल 1/x² + a² dx, x का रोल s प्ले कर रहा है, is 1/a tan inverse x/a, 1/a tan inverse x/a. So it is by applying this formula 1/a tan inverse s/a. This is the integral of 1/a² + s² ds. इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुका है 1/a tan inverse s/a. ये a और ये a कैंसल, becomes 1, and this is Fourier sine transform of the given function. Now remember dear students, यहाँ पे एक एक्सटेंशन है और ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, और जब हम इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स करते हैं ना तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा ये ऐड करते हैं. सो c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वी डोंट नो, इट मे टेक एनी वैल्यू. तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मिल ही गया है, लेकिन अब c को ढूंढना पड़ेगा, और c को भी ढूंढ सकते हैं. कैसे ढूंढेंगे देखिए. सबसे पहले तो इस इक्वेशन में s को 0 रख दो, s को 0 रख दो. f सफिक्स s ये फंक्शन का नोटेशन है, साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं इसलिए ये फंक्शन का नोटेशन है. यहां पर वेरिएबल s को 0 रखा है, प्लीज नोट इट. s को 0 रखा, 0/a 0, tan इनवर्स 0 होता है. पॉइंट टू बी रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 0 होता है. ये क्वांटिटी हो गई 0, तो c, तो what could we derive? fs of 0, fs function of 0 is c. इसे एक इक्वेशन नंबर दे दो. रिमेंबर दिस इक्वेशन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एट 0 इज c. अब हमारे पास एक दूसरी भी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, हम उसको भी यूज करेंगे, ये इक्वेशन को यूज करेंगे हम. इसमें भी s को 0 रख देते हैं, s को 0 रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा. fs ऑफ 0, s को 0 रखा है तो साइन 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इंटीग्रल ऑफ 0 इज 0. तो ये इक्वेशन क्या दे रहा है, fs एट 0 इज 0, और ये इक्वेशन कहता है fs एट 0 इज c. तो दोनों का ये रखना पड़ेगा ना, दोनों भी अपनी जगह सही है. एक इक्वेशन कह रहा है fs एट 0 इज c, दूसरा कह रहा है fs एट 0 इज 0. तो इसका क्लियर मीनिंग है, दोनों भी गलत नहीं है, इसका क्लियर मीनिंग क्या है, c की वैल्यू 0 है. तो देखा आपने, हमने कितने चतुराई से c को भी ढूंढ लिया. मतलब 2 इक्वेशंस थे, दोनों पे काम किया और दोनों के 2 फाइंडिंग्स थे, लेकिन दोनों सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया. तो c 0 निकल करके आ गया, और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अब पूर्णतः प्राप्त हो चुका है. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म c को 0 रखकर मिल गया है √2/π square root of 2/π tan inverse s/a plus 0. It is finally √2/π tan inverse s/a. This is Fourier sine transform of the given function e raised to minus ax upon x. तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉब्लम था. फंक्शन डिवीजन था 2 फंक्शंस का, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना टीडियस था, तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएशन के बाद में उस पर इंटीग्रेशन चलाया, इंटीग्रेशन चलाने के बाद में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, फिर पहले की एक्सप्रेशन यूज करके कांस्टेंट को ढूंढकर फाइनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया.
Is this clear, dear students? Any questions? If you don't have any questions, shall I proceed further? काही विचारायचं असेल तर विचारून घ्या. This is next example. Find f of x if f suffix s of f of x equal to s upon 1 plus s square. Try to understand the question. f of x पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो s का फंक्शन मिलता है डिनोटेड बाय कैपिटल F ऑफ s. लेकिन अब f ऑफ x ढूंढने के लिए कहा है और ये s का फंक्शन दिया है, तो f ऑफ s दिया है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा ताकि f ऑफ x मिल जाए. अभी तक हम ऐसा ही सॉल्व किए हैं और ऐसा भी किए थे इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन पहले फोरियर निकाले थे, फिर इन्वर्स निकाल कर फिर इंटीग्रल का वैल्यू ढूंढे थे, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल्स. लेकिन यहाँ पर आधा काम करना है, f ऑफ s से f ऑफ x पर जाना है. ऑब्जेक्टिव क्लियर है? Is the objective clear? Yes. This time I remembered. Thank you Amruta. Start कर दी है मैंने recording. Is the objective clear, dear students? Yes, ma'am. S का फंक्शन दिया है, x का ढूंढना है. तो let us start. तो taking inverse given, what are we given? We are given that Fourier sine transform of some function f of x is s upon 1 plus s square. This is what is given to us. Taking inverse Fourier साइन ट्रांसफॉर्म, तो इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मैकेनिज्म लगाते हैं. वी गेट, व्हाट विल वी गेट? अ फंक्शन ऑफ x डिनोटेड बाय स्मॉल f ऑफ x इक्वल टू √2 by pi integration from 0 to infinity f suffix s of s sin sx ds. Points to be noted, dear students. आउटकम x का फंक्शन स्मॉल f ऑफ x रहेगा. इंटीग्रैंड फंक्शन में f सफिक्स s ऑफ s आएगा जो कि s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर दिया है, और साइन sx है वो तो कॉमन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू s करना है. पॉइंट टू बी नोटेड, डियर स्टूडेंट्स. तो आगे बढ़ते हैं. f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ s को रखते हैं s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर साइन sx ds. f ऑफ x ढूंढना है. f ऑफ x ये इंटीग्रेशन है. अब कैसे कर सकते हैं? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय s. See, some adjustment we have to do.
then and only then we can obtain integral. So we are doing adjustment, we are multiplying and dividing by s. So what do we get? न्यूमरेटर में एस स्क्वेयर अपॉन डिनोमिनेटर में s इंटू 1 प्लस एस स्क्वेयर साइन एस एक्स डी एस. अब एस स्क्वेयर adding 1 and subtracting 1 in the numerator, we get, what are we doing? We are adding 1 and we are subtracting 1. एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना, तो एडजस्टमेंट की है. अब ये एडजस्टमेंट से हमारा भला होने वाला है. हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स. रिमेंबर √2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वेयर. और ये साइन एस एक्स ॲज इट इज. ह्या क्वांटिटीला डिनॉमिनेटर सेपरेटली दिला, 1ला डिनॉमिनेटर सेपरेटली दिला, आणि आता ह्यातलं एस स्क्वेअर प्लस 1 एस स्क्वेअर प्लस 1 नॅलिफाय होईल आणि स्क्वेअर रूट ऑफ 2/π इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस इथे उरणार आणि इथे 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वेअर प्लस 1 साइन एस एक्स डी एस. सो ऐसा बन गया है ये. अब इसमें साइन एस एक्स को इस क्वांटिटी से और इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एस डी एस माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एस इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1 डी एस. तो ये विभाजन कर दिया है. क्योंकि ऐसा होता है ना, जब दो बच्चे झगड़ते तो झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा है तो मम्मी क्या बोलती, तू उधर जा. तो बस उनको अलग अलग कर दिया है ना. तो ये अलग अलग हो गए हैं. नाउ √2/π, okay, √2/π, and if you observe this is a derivation from Laplace transform. It is a derivation from Laplace transform. इस इंटीग्रल की वैल्यू हम इवेल्युएट कर सकते हैं and it is π/2. You have to remember this. इस इंटीग्रल की वैल्यू π/2 है. ये π/2 रख के और सिंप्लीफाई हो गया. Okay, and another is as it is minus 0 से infinity sin एस एक्स अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 डी एस. अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं. Let us call it equation number 2. And what is the left hand side? F of x. Let x is equal to 0 in equation 2. x को 0 ले लीजिए. तो f of 0 equals to √2/π bracket π/2 minus
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एस, एक्स को कितना रखना है 0, एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 डी एस, क्लोज इट. So f of 0 equals to root 2 by pi by 2 minus sine of 0 becomes 0, this integral becomes 0. So this is root 2 by pi into pi by 2. Pi by 2 minus 0 is pi by 2. So this is again further simplified. पाई को रूट पाई इंटू रूट पाई लिखेंगे, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे, रूट 2 बाय रूट पाई में से रूट पाई कैंसल्स, रूट टू कैंसल्स एंड इट इज रूट पाई बाय 2. तो नोट डाउन दिस, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2. नोट डाउन दिस. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. तो अभी तक हमने क्या क्या किया है उसका एक रिकैप ले लेते हैं. एस का फंक्शन दिया है, ये किसी फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है और जिस फंक्शन का है उसे ढूंढना है, मतलब एफ ऑफ एक्स ढूंढना है. तो फोरियर इन्वर्स का फॉर्मूला लगाया. फोरियर इन्वर्स का फॉर्मूला लगाने पर ये आया, एस से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो ये आ गया. फिर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया. फिर अंदर इंटीग्रैंड फंक्शन को सिंप्लीफाई करके 2 इंटीग्रल्स में कन्वर्ट किया. साइन एस एक्स अपॉन एस, इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई बाई 2 है. दिस इज फेच्ड एंड पुट, और इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने से पहले एफ ऑफ 0 कंप्यूट करके रख दिया है. यहां तक क्लियर है सभी को, या किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? Shall I proceed further? और इस इक्वेशन को 1 से डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय 2. ये निकाल के रखा है. वी विल नीड इट फर्दर, दैट इज वाई वी हैव टेकन इट आउट. नोट इट. अब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं. अभी सिर्फ समझ लीजिए, बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होगी. इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे. एक्स को 0 रखने से पहले एफ ऑफ एक्स का ये इक्वेशन था. इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन वहां पर लगेगा. वो इक्वेशन मैं फिर से लिखती हूँ, वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय पाई पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एस इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1 डी एस. इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएशन होगा. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 2 बाय पाई ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी दिस.
डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के चलते हैं. दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √2 बाय पाई. पाई बाय 2 से डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट. और यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एस एक्स 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1 डी एस. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. इट इज इक्वल्स टू √2 बाय पाई. 0 माइनस समथिंग इज माइनस. 0 से इन्फिनिटी. डेरिवेटिव ऑफ साइन एस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एस इज एस कॉस एस एक्स. डेरिवेटिव ऑफ साइन एस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एस कॉस एस एक्स. 1 upon s square plus 1 as it is ds. This term as it is. S and s gets cancel and it is √2 by pi minus integration from 0 to infinity cos sx upon s square plus 1 ds. So this is derivative of f of x with respect to x. Putting x is equal to 0 in this equation number 4. तो डेरिवेटिव इज अ फंक्शन. ये फंक्शन है वो और उसमें x को 0 रखा. सो इट इज √2 बाय पाई. x को 0 रखेंगे. cos 0 1 होगा. माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 डी एस. cos 0 1 हुआ. 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 डी एस. ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है और ये इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला से डिराइव कर पाएंगे. सो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ 0 इज √2 बाय पाई. माइनस साइन सामने लेते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स. कैन एनीवन टेल व्हाट इज द इंटीग्रल का वैल्यू? अभी डिस्कस किया था हमने. इट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए. ए का वैल्यू इज 1. सो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स एस अपॉन 1 फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस. So upper limit tan inverse infinity minus lower limit tan inverse 0. So it is equals to minus √2 by pi. Tan inverse infinity, dear students, point to be remembered, is pi by 2. Tan inverse infinity is pi by 2. Minus tan inverse 0 is 0. Point to be remembered, dear students. So this is minus √2 by pi into pi upon 2. It is equal to minus of रूट ऑफ पाई बाय 2. इसको सिंप्लीफाई करके इतना आ गया. व्हाट इज दिस? डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन एट 0 is minus √pi by 2. Let this be denoted by equation number 5. अब क्या करना है? ये निकाल के रख दिया हमने. दिस थिंग्स वी विल नीड डियर स्टूडेंट्स. हमें ये चीजें लगने वाली है इसलिए हम निकाल करके रख रहे हैं. ये वैल्यू हमें लगने वाली है. एफ फंक्शन का 0 पे वैल्यू, जो एफ ढूंढना है ना उसका 0 पे वैल्यू √pi by 2 निकाल लिया हमने. जो एफ ढूंढना है ना उसका डेरिवेटिव वाला फंक्शन एट 0 निकाल लिया और उसकी वैल्यू ये है. ये आगे लगेगा इसीलिए हम इसे निकाल रहे हैं. अब फोर्थ इक्वेशन को डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. तो अब फोर्थ इक्वेशन क्या है वो देखिए और उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पेशेंस रखिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होने वाला है.
मतलब यू विल ऑल्सो एंजॉय दैट फल, यू नो. इक्वेशन 4 ये था. इक्वेशन 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? मुझे पता है आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, बट थोड़ी देर के लिए सहन कीजिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होने वाला है. इसके टाइप नोट्स मैं दूंगी आपको, डोंट वरी. अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए. डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का ये इक्वेशन था. डिफरेंशिएशन का और एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं. मतलब इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स कितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है. तो मैं वो इक्वेशन यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ. ये इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है. एंड आई एम वेरी श्योर कि ये इतना डिस्कशन करने के बाद में आप में काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे मैथमेटिक्स के. आई एम प्रिटी श्योर कि द लेवल टू विच वी आर गोइंग इज वेरी वेरी गुड, इज गुड, अच्छा है लेवल. इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है. ये इक्वेशन नंबर 4 है. डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेटिव. याद आ रहा है ना एलडी? हाँ, तो धीरे धीरे हम एलडी की ओर जाने वाले. अभी एलडी का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिखेगा. सेकेंड ऑर्डर की डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स की. सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिए. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. कॉस एस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? डेरिवेटिव ऑफ कॉस एस एक्स. रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए एक्स इज माइनस ए साइन ए एक्स, इज माइनस ए साइन ए एक्स. तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, तो माइनस एस साइन एस एक्स. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर कॉस एस एक्स विल बी माइनस एस साइन एस एक्स. डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर लिया है, बाकी सब एज इट इज है. माइनस रूट 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एस स्क्वायर को साइड में रख के इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स परफॉर्म कर लिया. ओके. अब वन मोर स्टेप अहेड. सो कैन आई राइट दिस एज अ d2f? डियर स्टूडेंट्स, d2f equals to minus root 2 by pi integration from 0 to infinity minus s upon 1 plus s square into sin sx ds. d2f second order derivative of f is minus root 2 by pi. ये माइनस और माइनस को कर देते हैं प्लस. ये माइनस और माइनस को कर देते हैं प्लस. सो इट इज d2f इज रूट 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी s upon 1 plus s square sin sx ds. This is second order derivative of f. Point to be noted. तो अब इसे दीजिए इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दीजिए इसे. इसको हम स्टार कह देते हैं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f मिल गया है. हम f ऑफ x ढूंढ रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है. क्या क्या किया हमने? f एट 0 निकाल लिया, f डैश एट 0 निकाल लिया, df निकाल लिया, d2f निकाल लिया. d2f का एक्सप्रेशन याद रखिए,
√2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity s/1 + s² sin sx ds. प्लीज रिमेंबर दिस डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मैं आपको एक कंपैरिजन बताने वाली हूँ. d2f की जो वैल्यू है ना, वही f की वैल्यू है. हम जा रहे हैं f की ओर. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1, जो d2 है ना वही f है. तब जो f था ना वही उसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया है. तो व्हाट आर यू एबल टू फॉर्म्युलेट कि फंक्शन जो निकालना है उसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव और वो फंक्शन खुद एक जैसे है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड स्टार वी कन्फर्म कर लिया हमने. उन दोनों का LH राइट हैंड साइड सेम है तो डेफिनेटली वो दोनों सेम ही रहेंगे. वी कन्फर्म d2f इज f itself. इसमें किसी को कोई दिक्कत है अगर मैं ऐसा लिखती हूँ कि d2f इज f? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं रहनी चाहिए. दोनों सेम है ना वो, तो प्रॉब्लम क्यों रहेगी? प्रॉब्लम नहीं है. अब इसने मुझे LDE दे दिया है, सेकेंड ऑर्डर का LDE, linear differential equation with constant coefficient, dear students. So how can I write it further? d2 minus 1 operating on f giving me 0. इसी f की खोज में थे हम इतनी देर से और अब वो मिलता हुआ दिख रहा है हमें. d2 minus 1 operating on f is equal to 0. हाँ, अब इसको कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? LDE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर LDE with constant coefficients. f depends on x. तो it is homogeneous LDE, dear students. If you remember, right hand side function is 0, so it is homogeneous LDE. Homogeneous LDE with constant coefficients. So what is the solution? Solution is performing complementary function and equating it to dependent variable. So auxiliary equation. What are the roots? f of d लेना, 0 को इक्वेट करना, उसे auxiliary equation कहते हैं. What are the roots? Yes, anyone? What? Plus minus 1. Exactly. प्लस माइनस 1. नेचर कैसा है? फटाफट. Real. रियल और आगे रियल एंड Different. एग्जैक्टली, परफेक्ट. रियल एंड डिफरेंट. बनाओ एक्सप्रेशन, बनाओ CF वाली एक्सप्रेशन. देयरफॉर f equals to c1 e raised to 1x plus c2 e raised to minus 1x. Yes. तो f of x जो इतनी देर से हम ढूंढ रहे थे, अब वो उसकी एक्सप्रेशन तो मिल गई है. c1 c2 निकाल लेंगे, लेकिन अब उसका एक एक्सप्रेशन प्राप्त हो चुका है. फिरत आपण एफ ऑफ एक्स कडे जवळ आलेलो आहे. आधी आपण डेरिव्हेटिव्ह काढला, मग एफची व्हॅल्यू 0 वर काढली, डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू 0 वर काढली, सेकंड ऑर्डरचा डिफरन्सिएशन परफॉर्म केला. सेकंड ऑर्डरचा डिफरन्सिएशन परफॉर्म केल्याच्या नंतर आपल्याला कळलं की एफ आणि d2f सारखे आहेत. मग तिथे एक LD बनवला, त्या LDचं सोल्युशन काढलं आहे. त्याच्यात 2 कॉन्स्टंट्स आहे, त्यांचं वैल्यू काढायचं आहे आपल्याला. अब क्या टास्क बचा है? C1 C2 को ढूंढ लेना, बस इतना ही टास्क बचा है. तो C1 C2 को ढूंढने के लिए कोई मुझे बता सकता है क्या करना है? C1 C2 को ढूंढने के लिए हिंट देती हूँ मैं आपको.
एफ ऑफ ज़ीरो और डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो निकाल चुके हैं हम। क्या कर सकते हैं C1 C2 को ढूंढने के लिए? एनी आइडिया? डिफरेंशिएटिंग डबल स्टार, इसी इक्वेशन को जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है उसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग डबल स्टार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो फटाफट परफॉर्म कर लेते हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। C1 e रेस टू ई एक्स का डेरिवेटिव C1 e रेस टू एक्स, C2 e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव C2 e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन, C1 e रेस टू एक्स माइनस C2 e रेस टू माइनस एक्स। डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर लिया तो दिस इज अ न्यू फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसमें जीरो रख, एक्स को जीरो रख देते हैं। एक्स को जीरो रखेंगे, ई रेस टू जीरो वन होगा, ई रेस टू माइनस जीरो भी वन होगा। ये दोनों क्वांटिटीज एक्स को जीरो रखते ही वन वन हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू हमने पहले निकाल के रखी थी एंड इट इज रूट पाई बाय टू। तो एक इक्वेशन मिल गया हमें, C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय टू। गिव इट इक्वेशन नंबर से स्मॉल a। So this is one equation and there is another equation. What is that equation? जो f की इक्वेशन मिली थी ना, डबल स्टार में f को जीरो रखते हैं, डबल स्टार में x को जीरो रखते हैं। f ऑफ जीरो विल बी C1 e रेस टू जीरो प्लस C2 e रेस टू जीरो, so that is C1 into 1 plus C2 into 1, C1 प्लस C2। फाइनली ये भी मिल गया है। f ऑफ जीरो भी निकाला था हमने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ जीरो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ जीरो? रूट पाई बाय टू। डेरिवेटिव की माइनस रूट पाई बाय टू थी, इसलिए यहां पर माइनस। f ऑफ जीरो की रूट पाई बाय टू थी। सो सी what have we got? Let this be equation number 2. A or B, A and B are two equations and two unknowns. C1 plus C2 is root pi by 2 and C1 minus C2 is minus root pi by 2. Two equations and two unknowns. इसे हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। Adding the two will give 2 times C1 as 0. Root pi by 2 plus minus root pi by 2 is 0. So it clearly indicates 2 तो 0 नहीं है, प्रोडक्ट 0 है, मतलब C1 0। C1 मिल गया एडिशन से। सब्ट्रैक्शन से क्या मिलेगा? माइनस C1 माइनस C2। सब्ट्रैक्शन से C2 मिलेगा। रूट पाई बाय 2 है, यहाँ पर माइनस रूट पाई बाय 2 है। C1 minus C1 nullifies, C2 minus minus C2 is plus 2 C2 and minus into minus is a plus, so it is 2 times root pi by 2. 2 cancels and C2 ची व्हॅल्यू भेटलेली आहे C1 0, C2 रूट पाय बाय 2 ठेवायचं आणि f ऑफ x ची व्हॅल्यू भेटलेली आहे। फाइनली ये f ऑफ x में C1 को 0 और C2 को रूट पाई बाय 2 रखते हैं। सो इट विल बी फाइनली जिसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दिया था उस फंक्शन को हम प्राप्त कर चुके हैं एंड इट इज रूट पाई बाय 2 ई रेस टू माइनस एक्स। इतना छोटा सा फंक्शन लेकिन कितना घुमाया इसने। क्या वैल्यू है इसकी? केवल रूट पाई बाय 2 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। आर यू डन विद दिस? तो देखा आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म
करते वक्त हमें एलडी की मदद हो गई कि एलडी से हम सॉल्यूशन निकाल पाए ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इनिशियल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया, C1 और C2 मिल गए, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस पता थी। f एट 0, ऐसा f ढूंढना था जिसका 0 पे वैल्यू √π/2 है और जिसका डेरिवेटिव एट 0 इज -√π/2। तो इनिशियल वैल्यूज दी थी, उससे हम एलडी को सॉल्व कर पाए। एलडी को अप्लाई करके हम फोरियर साइन इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ढूंढ पाए। किसका? फंक्शन का। कौन से फंक्शन का? s/1 + s²। s/1 + s²। किसका ट्रांसफॉर्म था? केवल √π/2 e⁻x का। √π/2 e⁻x का। आर वी क्लिअर विथ दिस डिअर स्टुडंट्स? इथे आपण एक वेगळी प्रोसिजर परफॉर्म केलेली आहे। जे डे 1 ला एक्झाम्पल बघितले होते त्याच्यात फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढला, त्याच्यानंतर इन्व्हर्स फोरियर ट्रान्सफॉर्म काढला, त्याच्यानंतर व्हेरिएबलला एक व्हॅल्यू दिली, व्हॅल्यू देऊन रिलेटेड इंटिग्रलची किंमत काढू शकलो। डे 2 ला आपण काय बघितलं? फोरियर ट्रान्सफॉर्म कसा काढायचा। फंक्शन वेगवेगळे होते, लेफ्ट साईडला डेफिनेशन वेगळी, राईटला वेगळी, मग त्याचा ऑड इव्हनचा कन्सेप्ट आपण बघितला, आणि मग फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म कसा काढायचा, कोसाइन कसा काढायचा त्याचे एक्झाम्पल्स बघितले। आणि आज आपण फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म काढला, पण त्याच्यात डिफरन्सिएशन अंडर इंटिग्रल साइनचा वापर करावा लागला इंटिग्रेशन परफॉर्म करण्यासाठी। पुन्हा पुढचा एक्झाम्पल आपण इन्व्हर्स फोरियर काढला, इन्व्हर्स फोरियर साइन काढला, डिफरन्सिएशन अंडर इंटिग्रल साइन तर वापरलंच आपण, पण एलडी पण मध्ये आलं। एलडीचं सोल्युशन कसं काढायचं ते आपण एलडी चॅप्टरमध्ये शिकलो होतो, त्याच्यामुळे आपण तो सोल्युशन जनरेट करू शकलो। म्हणजे ते असंच डायरेक्ट जनरेट होत नाही, तर एलडीचा वापर पण करावा लागतो। ते वापर करून फोरियर साइन ट्रान्सफॉर्म काढलेला आहे। आर वी डन विद दिस? कैसा लगा ये एग्जाम्पल? लंबा चौड़ा लेकिन इंटरेस्टिंग, ट्विस्टिंग, इधर से उधर उधर से इधर, ये वैल्यू ढूंढो, ये वो वैल्यू ढूंढो, है ना? व्हाट आर योर सजेशन अबाउट दिस? क्या ओपिनियन है आपकी? एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड yes, so let us discuss next example। अब जैसे कि खाना बहुत पेट भर के खा लिया है, अब थोड़ा सा सॉफ खा लेते हैं। ऐसे फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) = 1/x। इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? √2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ f(x) sin sx dx। फोरियरचा साइन ट्रान्सफॉर्म विचारलाय, इन्व्हर्स नव्हे। f(x) वरून f(s) काढायचा आहे, स्मॉल f(x) वरून कैपिटल f(s) काढायचा है। तो f(x) को रखते हैं √2/π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ 1/x sin sx dx equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ sin sx/x dx। Now how to evaluate this integral? So we change variable,
we change variable. Let Sx is equal to t. Sx को t ले लिया. Differentiating both sides. Differentiating both sides, we get तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, s को कांस्टेंट अज्यूम करके, क्योंकि dx को रिप्लेस करना है. तो dx इज dt अपॉन s. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. dx ला dt अपॉन s ठेवणार आहे आपण. Yes. So when x, just a minute, when x is 0, how much is t? x को 0 रखो, t कितना होगा? 0 इंटू s is 0, t 0 होगा. When x is infinity, t is infinity. जब x 0 है तब t 0 है, जब x infinity है तब t infinity है. मतलब लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होने वाले. तो यूजिंग दिस इन इक्वेशन 1 we get what we get? F suffix s of s equals to root 2 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट्स वही रहेगी, साइन एस एक्स को ले लिया t, साइन t, x ची वैल्यू कितनी है? x is t upon s. From this x is t upon s. X is t upon s. And how much is dx? dt upon s. So by this change of variable, what happens? This s and this s cancels. This s and this s cancels. Sin t upon t dt. And the value of this integral, it is एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड इट इज पाई बाई 2, रूट 2 पाई बाई इंटू पाई बाई 2. इट इज रूट पाई बाई 2. इट इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2. सो दिस इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन 1 upon x. Of the function 1 upon x. It is a constant function of s. Its value is root pi by 2. छोटा सा एग्जाम्पल था ये. Any doubts? Any questions, dear students? Any questions? Shall I proceed further? और एक एग्जाम्पल और फिर ये चैप्टर फिनिश. आई विल शेयर टाइप रिटन नोट्स ऑफ दिस. सो अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए. फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म FCT ऑफ f of x equal to Fourier cosine of 1 upon x 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. x का फंक्शन है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है. फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x equals to root 2 by pi
integration from 0 to infinity f of x cos sx dx, root 2 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स को रखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स. Differentiating with respect to s, because this is a function of s. Fourier cosine transform is a function of s, so we'll differentiate with respect to s to both sides. Derivative equals to root 2 by pi. डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन डायरेक्टली करेंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, कॉस एस एक्स चा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस, कॉस एस एक्स चा विथ रिस्पेक्ट टू एस इज, कॉस एस एक्स चा विथ रिस्पेक्ट टू एस इज माइनस साइन एस एक्स with respect to s, so it is minus x sin sx, and the dx जशाला तसं. So derivative of f c function of s is root 2 by pi integration from 0 to infinity of this function. Okay, is it clear up to this point? Now what should we do? अभी पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था? ट्राई टू रिकॉल क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं? आर यू एबल टू रिकॉल क्या हो सकता है यहाँ पर? जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था वैसे करना है. लास्ट के लास्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स. एंड देन add and subtract 1. So it will be equals to integration from 0 to infinity. सेपरेटली डिनोमिनेटर दीजिए इस टर्म को और इस टर्म को. First term will become 1 upon x and second term will become 1 upon x into x square plus 1 into sin sx dx. Remember this is a derivative of Fourier cosine और Fourier cosine ढूंढना है हमें. What equation are we getting? Derivative with respect to s of Fourier cosine is equals to minus root 2 by pi integration from 0 to infinity 1 upon x minus or plus minus, it is minus 1 upon x into x square plus 1 sin sx dx. Let us confirm it once. Minus root 2 by pi
1 integral of 1 upon x minus 1 upon x into x square plus 1 sin s x dx. Yes, perfect. Minus root 2 by pi integration from 0 to infinity sin sx upon x dx minus integration from 0 to infinity sin sx upon x into x square plus 1 dx. So we have split this in two integrals. Now you have to assume its value is pi by 2 जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था, एंड माइनस इसकी वैल्यू ढूंढनी होगी. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स. अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, s इज इक्वल टू 0 रखेंगे, isn't it? Put s is equals to 0. Derivative function at 0 is sin 0 becomes 0. So minus root of 2 by pi into pi by 2 is minus square root of pi by 2. Point to be noted. So this should be noted. What next? Now we will put s is equal to 0. Put s is equal to 0 in equation f c of f of x equal to root 2 by pi integration from 0 to infinity 1 upon 1 plus x square cos s x dx. याच्यात s इज इक्वल्स टू 0 ठेवायचं आहे, म्हणजे s इज इक्वल्स टू 0 ठेवायचं आहे. So what do we get for this function for s is equal to 0? s 0 ठेवल्याच्या नंतर cos 1 होईल and 1 upon 1 plus x square dx. So this is Fourier cosine transform at 0 equals to root 2 by pi. Integration is tan inverse x upon 1 upon 1 into tan inverse x from 0 to infinity equals to root 2 by pi. Tan inverse infinity is pi by 2 and it is 0. So it is root 2 by pi into pi by 2 equal to root pi by 2. So we get Fourier cosine transform at the point 0 is root pi by 2. This is one outcome, and one outcome we have just obtained. At 0 derivative of Fourier cosine transform is minus root pi by 2. Derivative आणि f काढून ठेवला आहे 0 वर. So again
this will be used, and following the same procedure we will get same LDE, same roots, and then the function will be like this. We obtain C1 C2 using derivative and f at 0, and we get Fourier cosine transform as root pi by 2 e raised to minus x. उसी लाइन्स पे जाकर ये फंक्शन भी मिल जाएगा. If you have any questions, please ask. Root pi by 2 e raised to minus s, not x, s. ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन का. Any questions, dear students? And here I declare that Fourier transform chapter is also complete. If you have any questions, please ask. Any questions? No, ma'am. Okay, no questions. Fourier transform chapter complete हो चुका है. Linear differential equations without applications complete है. Applications बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सिविल के कंस्ट्रक्शन में होता है, बीम्स, उनकी बेंडिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे बीम लगी हुई होती है, बिल्डिंग्स बनाने में बीम होती है, तो वो बीम की कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितना झेल पाता है, कितना वेट वो टॉलरेट कर पाएगा, या बेंड हो जाएगा, बेंड होगा तो कितनी बेंडिंग होगी, ये सब हम एलडी में देखने वाले, एलडी के एप्लीकेशंस में. तो एप्लीकेशन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे बाद में, नो डाउट अबाउट इट. वेक्टर डिफरेंशिएशन पूरा हो चुका था और आज फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कंप्लीट हो गया है. अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछो. ये जितना भी अभी मैंने आपको लिख के एक्सप्लेन किया है उसका मैं सॉफ्ट कॉपी टाइप करके आपको शेयर करती हूँ, कोई इश्यूज नहीं. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? शुड वी स्टॉप हियर? डॉक्टर कौन सा लेने वाले?